اس کو کہتے ہیں چٹلی کا منہ. اوکے جی ہاں جی تم ہونے تھے کہتے سر آپ کے تو بائبل میں لکھا ہے کہ آپ شیروں کے بھی ماند میں جائیں گے تو نہ ڈریں گے تو چھپڑے چڑھا رہے ہیں. ایک قاضی صاحب تھے, میں نے گھر کو نا نوکری کا کار پالا ہوتا ہے. آئی ایم افریڈ آف ڈاگس, مجھے کتوں سے ڈر لگتا ہے. تو وہاں پر نا سامنے نا ایک ڈاگی نا لیٹا ہوا تھا, تو میں نا نوک نہ کروں, میں نے کہا بھائی یہ ذرا نا نوک کر دیں. وہ پادری صاحب نکلے اور کھٹر پینٹی کاسٹ کہتے لے بائبل جو تے لکھا تسی شیراں دی ماندا تے جاؤ تے ڈرو گے نہیں. میں کہا پائے میں شیراں دے کتے ہیں, مجھے بھائی کتے سے ڈر لیں. ٹھیک ہے چلیں جی لیٹس بگن ود چیپٹر نمبر 2. اگر میں آپ سے کہوں کہ واٹ از کرائسٹولوجی تو جواب کیا دیں گے آپ؟ اب میں نے چیپٹر 2 کو جو ہے وہ پکڑانا ہے. بیٹا چیپٹر 2 میں فرسٹلی آپ ٹائٹل دے دیں کہ پہلی 11 آیات کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے دا سپر نیچرل لو. چیپٹر 2 ورسز 1 till 11 ہم کیا کہیں گے؟ سپر نیچرل لو. جی جلدی سے پڑھیے گا ورسز 1 till 11. بس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی و درد مندی ہے تو یہ میری خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو, یکساں محبت رکھو, ایک جان ہو, ایک ہی خیال رکھو, تفرقے اور بے جان محبت کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا, یہاں تک کہ فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا رہی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے, خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا, خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں, اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے یسوع مسیح ہی خداوند ہے. So آپ ان فرسٹ 11 ورسز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ this is supernatural love. آمین. So آپ جو ہے اس کی اب سب ایڈنگ دے دیں کہ جناب آپ کو ورسز 1 till جو ہے 4 یا 5 بھی, تو آپ یہ لکھ لیں walking in unity. اگین جو ہے پولس رسول یہاں پر جو ہے وہ اتحاد میں یگانگت میں چلنے کے تعلق سے وہ ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب آپ نے پہلی عادت ایک لفظ دیکھا ہے بس اگر. ہم اگر کا لفظ کب استعمال کرتے ہیں؟ جب کوئی کنڈیشن دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہوں جوسن مجھے پتا ہے کہ تو نے نہیں آنا لیکن اگر ممکن ہو سکے تو آ جا. ٹھیک ہے, اگر ممکن ہو تو آ جا. میں کرن پپو کو فون کیا, میں نے کہا کہ پپو اگر تو آپ آج سیمینار میں اگر پاسبل ہے تو آپ فلانا کورس بھی لیتے ہیں. اگر تب ہوتا ہے جب کنڈیشن, لیکن یہاں پر اگر کا مطلب کنڈیشن نہیں ہے کہ بس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور بہت کی اور محبت کی دل جمائی اور روح کی شراکت اور رحم دلی درد مندی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں, مطلب در حقیقت تو یہاں پر جو ورڈ ہے if, ٹھیک ہے, میرے حساب سے اور گریک اس کی ٹرانسلیشن کے حساب سے یہاں پہ ورڈ کیا جانا چاہیے تھا یوز سینس. if کی جگہ سے کے بجائے سینس کا ورڈ استعمال کیا جانا تھا. اور اگر بھی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی شرط رکھ دی گئی بلکہ دلیل دے دی گئی ہے.
ठीक है, कि मसीह में जो है वो मोहब्बत की दिल जमाई है, रूह की शराकत है और रहम दिली और दर्दमंदी होती है। आमीन। उस ताल्लुक से बात कर रहा है। अब यहाँ पे वो 4 बातें जो है वो इस ताल्लुक से चर्च ऑफ फिलिपियंस में देखना चाहता है। नंबर 1 वो कहता है कि यक दिल रहो। आमीन। क्या कहता है? नंबर 2 वो कहता है यकसा मोहब्बत हो। एंड देन नंबर 3 वो कहता है एक जान हो। एंड नंबर 4 वो कहता है अपना ही एक ही ख्याल रखो। अब नंबर 1 वो क्या कहते हैं? यक दिल रहो। यक दिल से मुराद यह है कि आपके दिल मेरे दिल से मिलने चाहिए, मेरा दिल आपके दिल से मिलना चाहिए। आमीन। हमारे मोटिव जो हैं वो सेम हो, जैसे चौथे वर्ड में कह रहा है एक ही ख्याल हो, मतलब जैसे स्ट्रीम में मैं सोचता हूँ उस स्ट्रीम में आप भी सोचो। एक बात याद आ गई, उसको समझना जरूरी है मैरिटल लाइफ के एस्पेक्ट से भी। 4 भी नहीं हुए थे शादी को, ठीक है, तो मेरे वालिद साहब को कॉल आई कि, और वाइफ थी, कहती कि पादी साहब मेरे बंदे दे नाल ख्यालात मैच नहीं करते, ज़हन मैच नहीं करता। बाबा ने उसी घड़ी पासों कार को मुझे बताया ऐसा कितने और ज़हन लग गए। जब आपका मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ ज़हन मैच ना करे तो दर हकीकत प्रॉब्लम ये होती है कि आपका ज़हन किसी और के साथ मैच कर चुका है। ठीक है बेटा, तो आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? बस कॉल उठाइए, बाहर जाएं। So what actually happens is कि आप ये देख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि किसी के साथ उसका ज़हन मिल गया है। बाबा ने कहा अंदर किसी और दिन ज़हन लो जी जनाब, 4 या 5 हफ्तों बाद पता चला किसी और के साथ बात। So दिस डज नॉट मीन कि आपने भागना है या आपको सिर्फ एलिगोरिकली चीज समझाई है। आपको जो चीज समझनी है आप भी उस स्ट्रीम में सोचें जो चर्च जिस स्ट्रीम में सोचता है। एक डायरेक्शन हो, एक फोकस होना चाहिए हमें। और फिर क्या है? यकसा मोहब्बत। अच्छा जी, एमफिल है, हालेलुया, आई लव यू। पीएचडी है, हालेलुया, जप्पियां पाओ जी, आई लव यू। मैट्रिक है, जा पर हाथ तो क्या ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा मोहब्बत। यूहन्ना के खतूत का मुतालिया पादी साहब बैठे हैं और सेकंड में तो बहुत अच्छा पढ़ लिया अब तो खुदावन की तारीफ हो। आमीन। खुदा से भी मोहब्बत, लोगों से भी मोहब्बत, ये मेन थीम है यूहन्ना के खतूत। तो पौलुस भी ये कह रहा है यकसा मोहब्बत हो। यकसा मोहब्बत से मुराद ये है कि आपके मोहब्बत की हद बंदी ना हो, एक ही जो स्टैंडर्ड है मोहब्बत का वो हर किसी के साथ हो। स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो वो बात कहता है एक जान हो। एक जान से क्या मुराद है कि आप अगले बंदे का किसी का दर्द भी महसूस करने वाले हो। आमीन। आप दर्द महसूस करने वाले हो। अब यहाँ पर जो है एक दफा देख रहे कि यार व्हाट एक्चुअली यूनिटी इज नॉट। यूनिटी की बड़ी बात की है ना कि जनाब इत्तेहाद या खानगत ही है। अब ये खानगत या इत्तेहाद या यूनिटी क्या नहीं है, तो एक पॉइंट लिख लें कि इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी। ये कोई अदारी या अदारे का इत्तेहाद नहीं है। ठीक है, पॉल जब बात कर रहा है यूनिटी की तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो बात करता है स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल यूनिटी की बात करता है। आमीन। वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी से मुराद ये नहीं है कि जनाब जी तू पेंटिकॉस्टल है मैं पेंटिकॉस्टल ओके जी, वो प्रेस्बिटेरियन है मैं प्रेस्बिटेरियन ओके जी। नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशंस की बात ही नहीं कर रहा। वो बात कर रहा है कि जनाब आप कौन हो, मैं कौन हूं, स्पिरिचुअली मैं क्या हूं, प्रैक्टिकली मैं क्या हूं। याद रखो खुदावंद ने आपको फर्जंद होने का हक इसलिए नहीं बख्शा कि आप पेंटिकॉस्टल हो। खुदावन ने आपको फर्जंद होने का हक इसलिए नहीं बख्शा कि आप प्रेस्बिटेरियन हो। खुदावन ने आपको बैप्टिस्ट होने की वजह से आपको फर्जंदियत का हक नहीं दिया, बल्कि इसलिए दिया कि आप उसके बेटे पर ईमान लाए। आमीन। तो पौलुस जिस यूनिटी की बात कर रहा है, जिस इत्तेहाद की, जिस इगानत की बात कर रहा है, वो दर हकीकत क्या है? स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल। आमीन। वी आर चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। तो अब जब हम फैमिली हैं, अब चाहे
मैं आपको जानता हूं या नहीं जानता। भाई आपका नाम क्या है? नजीर। मैं भाई नजीर को नहीं जानता, बट मोस्टली मैं आप लोगों को जानता हूं, ठीक है। पर मैं जानता हूं कि ये भाई नजीर हैं, ठीक है, ये मसीह पर ईमान रखते हैं, इसलिए यहां पर आ जाए हैं, तो मेरे लिए क्या लगे? भाई। तो मैं इनसे क्या रखूंगा? इनसे मैं यकदिल भी होऊंगा, यकसा मोहब्बत भी रखूंगा, एक जान ही भी होऊंगा और एक ख्याल भी होऊंगा। यस, ये बंद कर दिए, ठीक है। सो आप ये हमें एक मेन थिंग यहां पर नजर आता है। इसीलिए यूनिटी जो है पौलुस भी बड़ा एम्फेसिस करता है और यीशु ने भी बड़ा एम्फेसिस किया। कैसे? हम जो हाई प्रीस्टली प्रेयर जो है यूहन्ना के इंजील में, जो कि 17वें बाब 9 से 11 तक मिलती है, हवाला नोट कर लें। हाई प्रीस्टली प्रेयर हम इसे कहते हैं हाई प्रीस्टली प्रेयर। ये मसीह यीशु की आखिरी दुआ थी मसलूब होने से पहले, पकड़वाए जाने से पहले, जो उन्होंने शागिर्दों के लिए की। वो कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना होऊंगा मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूं। आए खुदा बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हो। जिस तरह मैं और तू एक है, हमारी तरह ये भी एक हो। अगली आयत में वो कहता है, तो इसी आयत में कहता है, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए। यीशु भी जो है वो क्या कह रहा है? यूनाइटेड, यूनिटी। क्या आज हम यूनाइटेड हैं? सॉरी टू से, मैं अक्सर औकात ये बात करता हूं कि जनाब बाहर चले जाओ ना, अमेरिका कहीं पे भी, उधर डिबेट्स होती हैं पर चाय के कप नहीं छूटते, कॉफी के कप नहीं छूटते। इधर पता चलता है, अच्छा वो ग्रेस प्रीचर है, अच्छा जी वो लॉ प्रीचर है, अच्छा जी ओ एम है, उसकी डॉक्ट्रिन ये है। इससे पहले कि वो टेबल पे जुड़े ही, उससे पहले ही जिहाद डराने पड़ जाती है। गोरों की एक ये बड़ी खास बात है वैसे, जिधर मैकार्थर बैठा उधर आरसी स्प्रॉल भी बैठा है, जिधर आर्मेनिस्ट बैठे हैं उधर कैल्विनिस्ट भी बैठे हैं, बड़े बड़े स्कॉलर साथ साथ बैठते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे खुदा इस चीज को बेहतर करे। सो तीसरी आयत में जो है वो इस तरह से बात करता है कि these are actually the ingredients which are necessary for unity। और चौथी आयत में वो कहता है कि वो ये खास तौर पर एम्फेसिस कर रहे हैं, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं। अहवाल से मुराद है अपने ही मुफाद के लिए नहीं। हम अपने मुफाद, अपने फायदे का बड़ा सोचते हैं, लेकिन वो कहता है बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर करें, दूसरों को क्या फायदा पहुंचता है वो भी पता चले। आमीन। अब मैं बस इसको मैं स्किम अप करूंगा। और ऐसे लिए कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि, और मैंने वैसा मिजाज जो मसीह यीशु का था। मसीह यीशु किस तरह, चलें आपको लिखवा है, यक दिल था। आमीन। मसीह यीशु जो है अपने शागिर्दों के साथ शेयरिंग किया करते थे, वो यकसा मोहब्बत रखते थे। आमीन। वो क्या थे? वो एक जान होकर उनके साथ रहते थे, वो एक ही ख्याल रखते थे। ख्याल क्या रखते थे? आसमान की बादशाही। क्या आज आपका भी ख्याल आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही है या कुछ और है? वालिद साहब बड़ा जबरदस्त कहते हैं ना, डोंट बिल्ड योर ओन किंगडम, बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। गॉस्पेल माइंडेड बनना है। अगला बड़ा मुश्किल जो है वो टॉपिक आ गया है, जो कि आपको छठी आयत से आगे मिलता है। इसको हम कहते हैं क्राइस्टोलॉजी। ओके, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नोट कर लें जो बाइबल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद शायद मैं जो हूँ मैं लीव कर जाऊँ, फिर पास्टर उठा आपको डील करेंगे। क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लें। फिलिपियों के खत में इल्मुल मसीह पर नोट लिखें। असाइनमेंट दे रहे हैं। यस, इसका आपको मैंने क्रेडिट देना है ना, ओके, सेमिनार का। फिलिपियों के खत में इल्मुल मसीह पर नोट लिखें। अब
ये नहीं कि सिर्फ आप जनाब जी दूसरे बाब उसकी 6ठी आयत से 11वीं आयत तक का अगर आप खुलासा लिख के देते हो, पूरे के पूरे खत को देखिए कि इसमें पौलुस रसूल मसीह को पेश क्या करता है। ठीक है, इल्मुल मसीह के पर नोट लिखे, आगे डाल के ना क्वेश्चन मार्क आगे लिखे, और मसीह के ताल्लुक तालीमात पर भी, और मसीह के ताल्लुक से तालीमात क्या मिलती हैं, डॉट, और मसीह के ताल्लुक से क्या तालीमात मिलती हैं। ठीक है जी, अब आगे आगे क्राइस्टोलॉजी। सबसे पहले जो क्राइस्टोलॉजी में आपको जाना है, दिस इज जीसस। ठीक है, सो जीसस इज परफेक्ट मैन एंड परफेक्ट 50% मैन 50% गॉड, No. 100% मैन 100% गॉड। लेकिन पॉल यहाँ पर जिस चीज पे बात करेगा वो उसकी बशरियत के ताल्लुक से बात करेगा। जब परफेक्ट मैन की बात करते हैं तो मसीह की बशरियत के ताल्लुक से बात करते हैं, जब परफेक्ट गॉड के ताल्लुक से बात करते हैं तो मसीह की अलूहियत के ताल्लुक से हम उसकी बात करते हैं। सो वो कहता है उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, इससे ये मुराद है कि वो खुदा की सूरत पर था। आमीन। कुलसियों के खत लिखते हुए दूसरे बाब में नामियत में कहता है क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सिम होकर सुकूनत करती है। अबरानियों 1:3 नोट कर लें, वो कहता है वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। आमीन। कहता he is the image of God, वो खुदा की सूरत पर था। खुदा की सूरत पर से क्या मुराद है? Just like God the Father। जब हम तस्लीस की बात करते हैं, Father, Son, Holy Spirit, ठीक है, Son, Father, Holy Spirit, ये भी खुदा है, ये भी खुदा है, ये भी खुदा है, ठीक है। पर बेटा बाप नहीं है, बाप बेटा नहीं है, बेटा रूहुल कुद्स नहीं है, रूहुल कुद्स बाप नहीं है। तीनों से अलग हैं। There are 3 persons in one। ठीक है, ये आपके डॉक्ट्रिन से क्लैश करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन इस पे हम आपको सिखाएंगे, प्रॉपर्ली मैं सिखाऊंगा। ठीक है, there is one God but 3 persons। मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो हम यार मैं सेवा बताऊं, वो जो एक किताबों में हमें मिलता है ना, वो 1 + 1 + 1 नहीं 1 × 1 × 1, ये वैसे ना घिसा पिटा फॉर्मूला है। लेकिन चले मल्टीप्लिकेशन ही समझनी है तो मल्टीप्लिकेशन समझ लें। ठीक है, कि 1 + 1 + 1 क्या है? 3 होता है। लेकिन जनाब जी यहाँ पे क्या होता है? 1 × 1 × 1 होता है, वो 1 नहीं रहता है। ठीक है, इतना समझना है। खुदा एक है, खुदा वाहिद है। ठीक है, शिमा इस्राएल एलोही अदोनाय अखद। ये जो अखद का मतलब है ना, दर हकीकत अखद का मतलब है देयर इज वन गॉड बट 3 persons। उसमें प्लूरैलिटी जाहिर होती है। ये इल्मुल मसीह की बात है, जब हम करेंगे ना इल्मुल मसीह फिर उसमें आपको डिटेल ही बताऊंगा कि किस तरह जो अखद है, अबरानी लफ्ज अखद, वो जो है वो ट्राई एग्जिस्टेंस की बात करता है। और फिर एलोहीम, वो किस तरह से मतलब एक खुदा लेकिन उसमें 3 शख्सियात जो कि एक दूसरे से अलग है, उसके बारे में भी बात करता है। ठीक है, तो अखद एलोहीम, डर नहीं जाना कि सर ना मुश्किल मुश्किल कह रहे हैं। ठीक है, अखद के ताल्लुक से और जो एलोहीम के ताल्लुक से है वहां भी हम बाद में बात करें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? मसीह यीशु की। तो यीशु मसीह क्या है? वो कह रहा है अगरचे वो खुदा की, आगे वो कहता है खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज। अब यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि उसकी जात में फर्क पड़ गया। नो, जात में फर्क नहीं पड़ा। जात में क्या है कि वो अजल से मसीह जो है उसी मुकाम पर है जिस मुकाम पर खुदा बाप है। They 3 are God, same one। ठीक है, वो तीनों की जात क्या है? They are God। आमीन। उसका मुकाम, उसकी जो जात है वो नहीं बदली, लेकिन उसका मुकाम या उसकी हैसियत में फर्क है। वो कैसे आ गया कि आसमान के सारे जलाल और हशमत में जो है वो शामिल तो था, लेकिन यस्सु ने जो है
जो अलूहियत है उसने बशीरियत का जामा ओढ़ लिया। ऑथर्स ने बड़ी जबरदस्त बात की है। एक ऑथर कहता है अलूहियत ने बशीरियत का जामा ओढ़ा। अलूहियत ने यानी खुदा ने बशरी जामा, गोश्त जो है उसने वो ओढ़ लिया। और मुकाम में क्या फर्क पड़ा है जनाब? जिधर वो पहले जलाल में था, जिधर वो पहले आसमानी मुकामों में आराम में था, अब क्या है? फिदिया देने वाला बन गया। आमीन। अब किन मायनों में बाप बड़ा है ये भी देखना जरूरी है। किन मायनों में बाप बड़ा है? जी बाप जो है मसीह दुनिया में आया, ठीक है, वो गुनाहगारों के मुसाफिर भी हो गया। अगली आयत में पता चलता है, ठीक है, अगली आयत में हमें वही सीखने को मिलेगा कि वो क्या है? मसीह इंसानों के मुशाबे हो गया। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ गुनाहगारों ने उसका इनकार भी किया। मसीह का किसका इनकार किया? मसीह का इनकार किया। उसने हर तरह की जो है बदसलूकी क्या की? बर्दाश्त की। उसके मुंह पर थूका गया, सर पे कांटों का ताज धरा गया, एक काम 40 कोड़े लगाए गए, ठीक है, लेकिन ये बेटे को लगाए गए। किसको लगाए गए? ठीक है, बाप को नहीं। बेटे ने कहा मैं जाऊंगा, आई विल गो। और इसीलिए मुकाशफा की किताब ये बताती है कि वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बंदा है, शुरू से इलेक्टेड था, सिलेक्टेड था कि ये जाके इंसानों के लिए अपने आप को दे देगा। इस मुकाम में बाप बड़ा है, क्यों? क्योंकि उसने ये काम नहीं किया, वो तख्त पर अभी भी बैठा था। आमीन, आमीन। गहरी बातें हैं क्राइस्टोलॉजी की। ओके, आगे है मसीह ने उसके लिए क्या किया? मसीह ने इसलिए कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूं, खुश होते क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। जमीनी खिदमत में मसीह कह रहा है बाप मुझसे बड़ा है। अब बड़ा वो क्यों कह रहा है? इट मींस देयर इज अ डिस्टिंक्टिवनेस इन द पर्सनहुड ऑफ गॉड। वन गॉड बट थ्री पर्सन्स। आमीन। यूहन्ना 14:28 ये नोट कर रहे, ठीक है। अब जब वो वापस चला गया है, आसमानी मुकाम पर है, तो वापस उस जलाल में शरीक जो वो पहले रखता था। आमीन। अच्छा जी, वो आगे कहता है बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। सबसे बड़ी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन वाला क्या है? थर्ड ईयर वालों ने पढ़ी है। लोग कहते हैं कि जनाब उसकी जो इलाही सिफात थी ना, खुदा क्या है? खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा हमाजा हाजिर है, वो इल्मे कुल है, ठीक है, वो क्रिएटर है। खुदा मसीह यीशु ने जो है ये सिफात जो इलाही सिफात थी इनको छोड़ दिया था। नो, वो इलाही सिफात को नहीं छोड़ा। जब भी वो जमीन पर रहा, जब तक वो जमीनी खिदमत में रहा, तब तक हमें पता चलता है वो फिर भी इल्मे कुल था। इल्मे कुल कैसे था? उसे पता था यहूदा इस्करियोती पकड़वाएगा, पता था ना, उसको पता था यहूदा इस्करियोती पकड़वाएगा, मुझे पकड़वाएगा, उसे पता था पतरस मेरा 3 दफा इनकार करेगा। ये वो इल्मे कुल, ये वाज फॉर नॉलेज, ठीक है। वो काबिल मुतलक था, है और रहेगा। अब्राहम का मुसन्निफ कहता है वो कल आज बल्कि अब तक एक साथ। खाली जो है ना उसने किससे किया? वो जो आराम था, वो जो जलाल था, वो उसने छोड़कर बशीरियत का जामा ओढ़ा। यहाँ उसने वो अपने आप को जो है वो खाली किया। एक शख्स बड़ा जबरदस्त बयान करता है कि जलाल तो मौजूद था मसीह के ज़मीनी खिदमत में, पर छुपा था। जलाल मसीह की ज़मीनी खिदमत में मौजूद था, लेकिन कंसील्ड था। कंसील्ड कैसे था? वो फिर भी उसने कई जगहों पर अपना जलाल जाहिर भी किया। फॉर एग्जाम्पल पहाड़ पर मसीह की सूरत का बदल जाना, हमें फिर पानियों पर चलना। कुछ चल पाया पानियों पर आज तक कोई? मसीह मेरा चला है। उनके बाद जिहड़ा मसीह का फॉलोअर है वो भी चले, ठीक है। ओके जी, फिर आगे लिखा है खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। वाह, यानी खाली करने के बाद, खाली करने के लिए जो है यहाँ पर बहुत एम्फेसिस कर रहा है। बशरियत का ताल्लुक है कि अलूहियत को ना छोड़ा, बल्कि सिर्फ आसमान की अपनी मुकाम को जो है उसे छोड़ दिया। अलूहियत ने जो है वो बशरियत का
जामा ओढ़ लिया। खादिम के ताल्लुक से जो है यूहन्ना 13वां बाब उसकी 4थी आयत आप नोट करें, वहां पर आपको एक वाकया मिलता है, वो है यीशु ने दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। ये जो रुमाल बांधना है ना कमर से, ये खादिम होने की अलामत होती है। आमीन। ये खिदमत करने की एक निशानी हमें जो है वो मिलती है। उसके बाद मत्ती 20:28 में नोट कर लें, वो कहता है वो इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के लिए फिदिया में दे। आमीन। उसके बाद लिखा है कि वो इंसानों के मुशाबिह हो गया। इससे मुराद ये है कि वो हकीकी इंसान यानी खुदावन की बशरियत, यानी जो हकीकी तौर पर जो है उसने एक इंसानी रूप धारा। वो आप जैसा था, मेरा जैसे, मेरे जैसा था, लेकिन फिर भी वो बेगुनाह रहा। आमीन। बातें इसमें बहुत सी हो सकती हैं और खास तौर पर मसीह की सलीबी मौत के ताल्लुक से यशायाह 53 बाब इस ताल्लुक से जो है वो चीख चीख कर बोलता है। आमीन। अब जब मसीह यीशु ने बाप का जनाब काम पूरा किया है, सलीब पर मसीह ने क्या कहा? तमाम हुआ। सब कुछ पूरा करने के बाद मसीह ने क्या कहा? तमाम हुआ। तो आगे इसलिए लिखा है कि उससे भी वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से, ताकि हर एक घुटना जो है वो उसके आगे। अब यहाँ पे जो हर एक घुटने झुकने की बात है ना, सॉरी इसको मिस इंटरप्रेट नहीं करना, लोग इसी गलत तफसीर भी करते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सब लोग निजात पा जाएंगे। नो, किसी शख्स ने कहा मुबारक है वो घुटने जो अभी झुकते हैं, क्योंकि बाद में जो घुटने झुकेंगे ना वो अब्दी हलाकत के लिए झुकेंगे। लोग जानेंगे कि ये वाकई बादशाह है, लेकिन उनके पास मौका नहीं होगा। हमें आपके पास, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आपके पास मौका है। उसके बाद लिखा है कि उससे जो नाम बख्शा गया वो सब नामों से आला है। यीशु नाम मीठा नाम है। नाम पर मैं बात करना चाहता था पर अभी टाइम नहीं है। और खुदा और हर एक जुबान क्या करेगी? इकरार करेगी कि मसीह